जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो वही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रजा च होवे, थोड़ा शुक्राना ते थोड़ी बड़ाई होवे। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना कि तुसी साडी बाह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया, अपनी प्यारी संगत बनाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुक्राना, सानू ये स्वास देन दा शुक्राना, ये इन्ना प्यारा गुरु परिवार देन दा शुक्राना, हर ब्लैसिंग दा शुक्राना 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 शुक्राना। हर उस चीज़ दा शुक्राना जो तुसी सानू दित्ती गुरु महाराज जी, हर उस चीज़ दा शुक्राना जो तुसी सानू नहीं दित्ती गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल दा शुक्राना, पल पल दा शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी दी तां मैं बड़ाई नहीं कर सकदी, ना ही मेरी इन्नी औकात है, ना ही मेरी इन्नी समझ है, बट गुरु महाराज जी इन्ने प्यारे ने। गुरु महाराज जी ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦ ਉੱਠੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੜਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਨੇਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਧੁੰਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਨਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਬਾਹ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਾ, ਕੋਈ ਪਤਲਾ, ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਕੁਛ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ 50 ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲਸ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ,
ਹੈ ਨਾ, ਓਵਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਤਿਆਰੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਫੈਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ, ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਹੋਣੀ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਨਕਾਮੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਲੋਡ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਨੈਕਲੈਸ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ओम श्री विघ्न हरताय नमः। वक्रतुंड एकदंत कृष्ण पिगाक्ष गजवक्त्र लंबोदर विकटमेव विघ्न राजम धूम्रवन वाले बालचंद्र विनायक गणपति गजानन। श्री गणेश जी महाराज जी की जय। गुरु पिता जी महाराज जी आज 12 नाम गणेश जी ਦੇ ਜੋ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਸੋਹਣੇ ਕਾਜ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु पा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सतगुरु सदा सहाय। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਲਈਏ ਸਹਾਇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੰਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀਆਂ ਆਪਦਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਂਡ ਟੂ ਆਲ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੁਸਕਰਾਨਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਝ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਈਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਾਏ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਪਾਏ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਆਗਰਾ ਗਏ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿੰਝ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਆਈਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਝ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਝ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਫੇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਕਰਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਬ ਕਰੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਿ ਸੋਫਟ ਹੈਂਡਸ ਨਾਲ ਫੇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਉਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੈ। ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਏ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਂਗਲ ਥਾਮੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੀ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਹਾਰੇ ਕੁੜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਜਨ, ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਉੱਚੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਦਾਨ ਦੇਈਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਫਿਰ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਓ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਦਿਓ, ਕਿ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਦਿਓ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿੱਡੀ ਟੱਚਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਸ ਤੇ ਭਜਨ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮਾਲਿਕ। ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਝ ਪਾਣੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ ਭੋਲੇਨਾਥ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਓ ਮਾਲਿਕ। ਤੇ ਰਿੰਕੂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿੰਝ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਕਿੰਝ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ
ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀਏ ਉਹਦੇ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਿੰਪਥੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਿੰਜ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਬੁਰੇ ਵਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੇਅਰ ਫੋਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲਾਸਟ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖ ਕੇ 7 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਬੋਲ ਕੇ ਅੱਧਾ ਜਲ ਪਹਿਲੇ ਪੀ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਹਾਫ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਂਪੂ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਹੇਅਰ ਫੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ, ਸਟਮਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਸਤੇ, ਥਰੋਟ ਵਾਸਤੇ, ਆਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏ, ਮੈਂਟਲ ਹੋਏ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु पिता। शुकराना गुरु पिता। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जी मंत्र जाप में शुरू करिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज तारीख है 11 सितंबर, रात के 11:30 बज रहे हैं। गुरु जी ने शुक्राना करना बोला जी, मैं शुक्राना कर रही हूँ। मेरा मोबाइल तो मिल गया चोर से, चोरी जिन्हें की थी मेरे को वो नहीं, मेरा सब कॉन्टैक्ट नंबर सब डिलीट हो गई। सिम कार्ड चेंज नहीं हुआ, नंबर वही है था। मेरे काम वाईफाई का एंटीना असी नया लेके आए, मेरा पति लेके आया और वो लगाया, वो चलता पे वो सारी कार की सब चीज़ा खराब हो गई। मेरा एक चीज़ असी ठीक करते हैं और दूसरा खराब हो गया। मेरा गैस खराब हो गया, वो नया गैस सिलेंडर बर्नर खराब हो गया। सत्संग जी और टैक मैजिक वाले हट नहीं रहे, लोग बहुत कम बहुत कर रहे हैं। मेरे बच्चे ने अभी तक 2 महीने हो गया, जॉब नहीं मिल रहा है। गुरु जी का अरदास कर रही कि उन्हें जॉब दिला दे, कितने भी दिला दो।
वो बेचारा बहुत तकलीफ आस लगा के बैठा है, किसी करा देगी करके। उनमें सत्संग वीरान कर दियो, अगला सत्संग लेके आऊँगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। आई लव यू पापा, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राज अंकल बहुत बहुत धन्यवाद, तुझे ज़्यादा सत्संग शेयर कर दी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। सुबह का सत्संग है। कल गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था जिसमें लिखा था 999 का महायोग बनाया, सत्संग जल्दी सुन और मुझे अपने घर बुला। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने ये सत्संग पूरा सुना और शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने एक सत्संग और मैं अभी वो सुनूंगी कि ये एक चीज़ बना कर खा ले, तेरे अंदर तेरी बीमारी सब ठीक हो जाएगी, तू अंदर से ठीक नहीं है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे अंदर की बीमारियों को भी आप जानते हैं, हमें तो पता नहीं है बाबा। तो शुक्राना अनंतम बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अभी उसको सुनूंगी बाबा। और संगत जी आज पता नहीं अपने आप कैसे 5:30 का अलार्म लग गया। मैं उठी तो देखा, मैंने कहा है कि और दिन तो लगता नहीं था, आज कैसे लग गया। तो फिर उसको मैंने बंद कर दिया, सो गई। फिर दोबारा लगा 5:30 में अलार्म। तो शुक्राना बाबा, गुरुबा ने उठाया ये। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय आंटी जी। गुरुपा सब पर अपना ब्लेसिंग दीजिएगा, सब बच्चों को ब्लेस कीजिएगा, सब दीर्घायु हो, निरोगी हो, अच्छी संगत हो, उनके पास अच्छी भावना हो बाबा। शुक्राना 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 बाबा। और मेरे से जो भी गलती हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और मैं अपने पितरों से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मेरे परिवार से जो भी गलती हुआ है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बच्चों को गुरुपा द्वारा ब्लेस करने के लिए आभार व्यक्ति की एक छोटी सी कोशिश है। गुरुपा ने मुझे ब्लैक मैजिक के ढेरों सत्संग सुनाए, मुझ पर मारण क्रिया करने का संकेत दिया, किसने करवाया ये भी बताया। और जब गुरुपा की ढाल की वजह से मुझ पर इन क्रियाओं का असर नहीं हो रहा था तो मेरे विरोधियों ने मेरे पति और बेटों को निशाना बनाया। पहले तो मेरे बड़े बेटे को बहुत तेज बुखार आता था और ऊपर से शरीर ठंडा रहता था। फिर उसे चिकनगुनिया हुआ। बाहर निकलने से डरने के लिए या तो वो जोर से गिर जाता था या कभी उसके पीछे कुत्ते लग जाते थे। इस तरह से वो बाहर जाने से कतराने लगा और वो जहाँ जाता मुझे साथ चलने को कहता।
अब तो ऐसा हो गया है कि उसे कई बार सिर में असहनीय दर्द होता है और चक्कर आए जैसे लगता है, पर गुरुजी का मंत्र जाप कर वो सब सहन कर रहा है। नकारात्मकता के चलते सुबह जल्दी उठने वाला मेरा बेटा 8-9 बजे तक सोता रहता है। बीच में तो पूजा भी नहीं करता था और ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ जाता था और कूदता था। बहुत दूर दूर चला जाता था साइकिल से। ये तो गुरुपा की नज़र उस पर थी, इसलिए गिरता था, पर उसको उतनी चोट नहीं आती थी। क्रोधी स्वभाव का होते जा रहा था वो, पर गुरुपा ने आश्वस्त कर दिया है मुझे कि मेरे हाथों में है तेरे बेटे का भविष्य, और मुझे चिंता करने से मना किया। बस मुझे शुक्राना, नाम जाप, अच्छे ग्रंथ जैसे शिव पुराण, शिव चालीसा, सुखमनी साहिब, चौपाई साहिब, जपजी साहिब का पाठ करने के लिए या सुनने के लिए कहा और ध्यान करने के लिए कहा। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बेटी का गुरुपा के चरणों में लख लख शुक्राना। हमारे पति अंकल की तरफ से गुरु पिता आपके चरणों में शुक्राना। हमारे तीनों बच्चों की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना। मेरी माँ की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना। हमारे बड़े भाई की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना। उसके हर एक सांस का शुक्राना, उसे सुरक्षित रखने का शुक्राना। हे गुरुपा, उसके हमेशा अंग संग रहिएगा और उसकी रक्षा करिएगा। वो बहुत दिक्कत में है। हे गुरु महाराज, आपने मैसेज किया था कि एक अनहोनी होने वाली है। हे गुरु पिता, उस सत्संग को सुना और आपने उस अनहोनी को टाल दिया। हे गुरु पिता, उसका शुक्राना। हे गुरु महाराज, फिर आपने मैसेज किया था कि सत्संग सुन, एक्सीडेंट होने वाला। एक्सीडेंट के आपने बहुत सारे सत्संग सुनवाए। हे गुरु पिता, उसे भी सुना और हमारे भाई की रक्षा करने का लख लख शुक्राना। उसके हर पल हर क्षण उसकी रक्षा करने का शुक्राना है गुरु पिता महाराज। और सच में आसपास एक मृत्यु की खबर सुनने को मिला और एक जगह एक्सीडेंट, बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट का खबर सुनने को मिला। हे गुरुपा, उन लोगों को सब्र दीजिएगा, उनके दुख पीड़ा को कम करिएगा। हे गुरुपा, और हमारे घर में आने वाली अनहोनी को आपने टाला, उसका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अंतम शुक्राना। हे गुरु पिता महाराज, आप मेरे बड़े भाई की रक्षा करिएगा। वो उस समय बहुत संकट में है। उसे कुछ खराब दोस्तों का संगत मिल गया है और वो भी आपने बताया था कि वो पहले जान नहीं पाया है। जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग थे, उनके द्वारा उन्हें जाल में फंसाया गया है और कोई रिश्तेदार भी उसमें शामिल है। संगत जी, मुझे ये नहीं पता कि शायद किसी के लिए गुरुपा मैसेज भी करा रहे हो। तो उस समय हे गुरु महाराज, वो जान नहीं पाया था, अब बहुत बुरी तरह फंस गया है। गुरु पिता, उसकी हमेशा रक्षा करना। हे गुरु महाराज, उसके पे शनि महाराज के 7.5 वक्र दृष्टि, इन सब का
प्रकोप शुरू से रहा है। हे गुरु पिता, उससे जो भी अशुभ फल हो उसको शुभ फल में बदल दीजिए। हे गुरु पिता महाराज, उसके जीवन में आने वाले कष्टों को हे गुरु पिता महाराज टाल दीजिए। हे गुरु पिता महाराज, उसके जो भी पिछले जन्म में माड़े कर्म किए हो उसे हे गुरु पिता महाराज कटवा दीजिए और उसकी रक्षा कीजिए पिता महाराज। हे गुरु पिता महाराज, हमारे छोटे भाई की तरफ से भी आपके चरणों में लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता महाराज, आपने बोला था कि गणेश जी तुम्हारे घर में विघ्न हरने आने वाले हैं गणेश चतुर्थी के समय। तो फिर उस समय गणपति बप्पा को हमारे घर में भेज के सारे संकटों को दूर कराने का शुक्राना, माता लक्ष्मी के साथ हमारे घर में विराजमान रहने का शुक्राना और नीम करोली वाले बाबा की कृपा दिलाने का शुक्राना। हे गुरु पिता महाराज, हम जब भी डिप्रेशन में रहते हैं तो आप बहुत हमें संभालते हैं, उसका कोटि कोटि शुक्राना। हे पिता महाराज, मुझे हमारे परिवार की और मेरे मायके के परिवार की गुरु पिता हमेशा रक्षा करेगा, हम संग रहिएगा, ये आप ही का सहारा है गुरु पिता महाराज। हे गुरु पिता महाराज, अपने टेलीपैथिक की थी कि कोई रिश्तेदार भी इसमें शामिल थे गुरु पिता महाराज, ये तो आप ही देखेंगे। और आप हे गुरु महाराज, आप सब जानते हैं, आप ही संभालिए इस सब चीज़ों को, हम लोग नहीं संभाल सकते। हे गुरु महाराज, मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है, अब मेरी बहन की शादी नहीं हुई है, उसका मान सम्मान पूर्वक शादी ब्याह करवा दीजिए पिता महाराज, ये आपसे अरदास है और उसकी रक्षा करिएगा। हे गुरु महाराज, आपने बोला था पितृपक्ष में तुम्हारे पितरों को तुम्हारे पितृ खुश हो जाएंगे, कड़ा प्रसाद मुझे चढ़ाना और उन पितरों को भी प्राप्त हो जाएगा और वो तुझे आशीर्वाद देंगे। तो गुरु पिता महाराज, मैंने कड़ा प्रसाद चढ़ाया था और नीम करोली बाबा का भी मैसेज आया था कि मैं तुम्हारे घर आया था, तुम तुम्हारे पितरों को लेकर। हे गुरु पिता महाराज, हनुमान जी महाराज, उसका शुक्राना। हे गुरु महाराज, एक दिन काली माता हमें स्वप्न में दर्शन दी थी सुबह 6 बजे, तो उन्होंने भी हमारे कष्ट को काटा है। माता रानी का भी शुक्राना। और आपने टेलीपैथी भी किया, तुझे पता नहीं है कि तेरे ऊपर आने वाले कितने कष्टों को मैं और आदिशक्ति भवानी काट देते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। हे गुरु पिता महाराज, हे माता रानी, उसका लख लख शुक्राना। आप इन लोगों का सहारा है पिता महाराज। हे माता रानी, आप संभालिएगा और हमारे भाई की भी रक्षा करिएगा, पूरे परिवार की रक्षा करिएगा, भाई के परिवार की रक्षा करिएगा, हमारे बच्चों की रक्षा करिएगा। हे गुरु पिता महाराज, आपने टेलीपैथी की थी 5 रोटी खिलाने के लिए गौ माता को, वो तो अभी नहीं खिला पाए, पर आज हमारे दरवाजे पे 4-5 गौ माता लोग खड़ी थी, तो हमने उस रोटी पर सरसों का तेल और नमक लगा के उनको खिला दिया। तो पता नहीं किस रूप में वो लोग थी, उसका शुक्राना। हे गुरु महाराज, आप हमेशा टेलीपैथी करते हैं कि तू इतना चिंता क्यों करती है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हे गुरु पिता महाराज, हमारे परिवार के साथ रहने का लख लख शुक्राना। और हे गुरु पिता महाराज, एक दिन आपने स्वप्न में दिखाया हमारे ससुर जी लेटे हैं और उसके पीछे दीवार पे शंकर भगवान बने हैं। अभी कल ही हम पूजा कर रहे थे
तो आपने वहाँ पे भी पूजा समय में नींद आ रही थी, उसमें आपने दर्शन दिया भोले बाबा के रूप में, और पता नहीं क्या उसका क्या क्या मतलब था, हम समझ नहीं पाए। तो उसका शुक्राना, और न जाने कितने कष्टों को गुरुपा आप स्वप्न में ही काट देते हैं, उसका शुक्राना। और आपने आपका मैसेज आया था कि उसमें विजन पावर मिलने का, तो जो भी हो गुरु पिता सब चीज़ का शुक्राना। हे गुरु पिता, हमारे हर कष्टों को दूर करने का शुक्राना, हमें हिम्मत देने का शुक्राना, हमें बल देने का शुक्राना, हमें हर संकट से पहले ही आगाह करने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना। हे गुरु पिता महाराज, हमारे सभी कष्टों को दूर करने का शुक्राना। हे पितृ लोग, हमें से जो भी गलती हुआ हो, हमें माफ़ कर दीजिएगा। और आप लोग हे गुरु जी, हमारे सभी पितरों को और हमारे मायके के पितरों को और हमारे नानी के घर के पितरों को, सभी लोगों को शांति प्रदान करिए, सुख प्रदान करिए, आनंद प्रदान करिए। और उन लोगों को कभी भी ब्लैक मैजिक करके कोई बंदिश ना बना पाए, ऐसी कृपा करिए। और सभी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति प्रदान करिए और हमें आशीर्वाद, हमारे परिवार का आशीर्वाद दीजिए। हे पितृ महाराज लोग, और जो भी कष्ट हो हमारे दूर कर दीजिए, हमारे भाई के जीवन के कष्टों को दूर कर दीजिए, हमारे माँ को भी ब्लेस कर दीजिए। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यह सत्संग जो भी शेयर करे उनका भी कल्याण हो, जो भी सुने उनका भी कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालका जी, आपकी की सदा आई जय हो। संगत जी, आज मैं एक प्यारा सा सत्संग लेके आई हूँ। गुरुपा जी ने मैसेज किया, बहुत अच्छा, पॉजिटिव मैसेज आया है, बहुत अच्छा। मेरे मन में बहुत शांति मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हर पल, शुक्राना हर सांस सांस, शुक्राना मेरे मालिक, आपकी सदा ही जय हो। संगत जी, गुरुपाल जी ने बताया कि बेटा सब कुछ ठीक हो गया है, अब तू परेशान ना हो, तेरे दुश्मनों की मैंने खाट खड़ी कर दी, वो सब नाच रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं होना। पहले उनको बहुत वार्निंग मैंने दी, लेकिन वो नहीं मान रहे थे, तो अब वो भाग रहे हैं इधर उधर, उनको सजा मिल रही है बहुत अच्छी सी। और बेटा तेरा भला ही भला होगा, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, तैयार हो जा नाचने के लिए। ऐसे बोला गुरुपा जी ने। नाचना आता है?
तो तू नाचेगी कूदेगी खुश होगी। अब कोई भी दुख तेरे को सताएगा नहीं, तेरे आसपास भी दुख नहीं होगा। मैं बैठा हूँ ना, मैं देखता हूँ कैसे तेरे पास दुख आता है। अब ऐसे बोला मेरे गुरुपाल जी ने बोला। इतना प्यारा सत्संग है आज। आज बहुत प्यारा दिन है शंकर जी। मेरी आत्मा जो मेरे ही अपनों ने छलनी कर रखी थी, आज गुरुपाल जी ने इतना प्यारा, इतनी प्यारी न्यूज़ सुनाई कि जैसे मेरे जख्म, जैसे मेरे जख्म को मरहम लगा है। बहुत सुकून पाया मैंने आज। संगत जी अभी कुछ 1-1.5 घंटे की पहले की बात है। मुझे सपना जब ये न्यूज़ मिली, उस वक्त मैं काम में बिजी थी, बहुत घर के काम में बिजी थी। तो मैं सत्संग में थोड़ी सी देरी हो गई संगत जी। लेकिन मैंने सोचा क्या तो सत्संग, प्यारा सत्संग संगत, पूरी संगत परिवार को सुनाऊंगी जरूर। ये बहुत प्यारा सत्संग आज मैंने सोचा ही है, आज इसे मैं सत्संग सुना रही हूँ। गुरुपा जी ने सब कुछ ठीक कर दिया, सारी नेगेटिविटी को भस्म कर दिया संगत जी मेरे। अब मेरा घर बहुत प्यारी बात है संगत जी, मुझे भी याद आई है। आज मैं जरूर सुनाऊंगी। हाँ जी संगत जी, मैं गुरुपाल जी मैंने अपने आप ही से बोला, अपने ही मन में बोला था ये बात कि संगत गुरुपा आप मेरी बातें सुनते हो कि नहीं, आप मेरे पास रहते हो कि नहीं। ऐसे बस मेरे मन में ही बात हुई थी। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं हैरान हो गई। मेरे सामने मैसेज आया गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं बेटा मैं तेरे बिल्कुल पास हूँ, मैं तेरे पास ही रहता हूँ। मैंने पढ़ के और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा गुरु जी सुन रहे हैं, सच्ची बात कहते हैं मैसेज में कि मैं तेरी दिल की सारी बातें जानता हूँ, क्या क्या सोच रही है, क्या सोचती है। तो मैंने सारी बातें पढ़ी, मैसेज पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी आंखें भर आई संगत जी। मैं कहा देखो, मैं तो मन में ही बातें सोची, लेकिन वो परमात्मा हमारे बिल्कुल पास है, बहुत पास, बहुत पास है। संगत जी आपको अभी करिश्मा बाकी है, सुनते रहिएगा। आज तो मुझे शायद नींद भी ना आए। मैं ऐसे को पढ़ के मैं फिर से काम में लग गई संगत जी। 1 ही मिनट हुआ था, मैं वो जैसे दूसरी मंजिल में मैं रहती हूँ, तो तीसरी मंजिल में मैं ऊपर गई हूँ। जैसे ही मैंने वो अंधेरा था वहाँ पे, तो मैंने गुरु जी का नाम लेते हुए मैंने जैसे ही कमरे की लाइट जलाई, तो मेरी नज़र ही फर्श पे पड़ी। तो देखा तो गुरु जी, अब क्या कहूँ आपको, मैं गुरु जी मतलब जब दिखाते हैं कि मैं हूँ, तो उन्होंने दिखाया, सच में दिखाया। देखो कितना अच्छा लगा मुझे, आंखें भर आई सच्ची संगत में। क्या बताऊँ आपको, इतने प्यारे गुरु पाप मेरे कितने प्यार करते हैं अपने बच्चों को। उन्होंने बताया कि देख मैं यहीं पे तो हूँ। जल्दी सुनती नहीं है, समझती नहीं है, एकदम से मेरे सामने। मैं कबूतर का पंख कहाँ से आ गया बताओ संगत जी। रात के 11 बजे कबूतर का पंख मिल जाएगा कहीं से? नहीं ना, ये गुरु जी कर सकते हैं। कबूतर का पंख जैसे मैंने देखा फर्श पे, और मैं तो भाग के मैंने उठाया और मैंने इसको
जय जय किया, फिर उसको चूमा। मैंने कहा देखो कितने प्यारे ग्रुप आप मेरे। और उन्होंने मुझे फिर से गिफ्ट दिया, वो मुझे गिफ्ट देते ही रहते हैं संगत जी। मुझे जब भी ग्रुप आते हैं मेरे घर में, जब भी जैसे फेरा लगाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं। जब आते हैं तो सच में संगत जी क्या बताऊँ, चारों तरफ तो कबूतर दिखते हैं। वैसे मुझे आसपास भी कबूतर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जब मैं जैसे कि बाहर जाती हूँ या मैं अपने रूम से बाहर आती हूँ, कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो अपने आप बाहर, जैसे घर से कमरे में जैसे बाहर से निकलती हूँ, देखती हूँ बाहर आसमान की तरफ, तो एकदम से कबूतर दिखते हैं। कबूतर ज़रूर दिखते हैं, मुझे ज़रूर दिखते हैं। और जैसे रूम के बाहर ही मैं पहुँचने वाली होती हूँ, तो वहाँ पे कबूतर का पंख ज़रूर गिरते हैं दूर पर, और मैं जय जय करके उठा लेती हूँ। वो मेरे पास संगत जी आप मानोगे कि बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं कबूतर के पंख। वो जब जब मुझे गिफ्ट देते हैं, मैं जय जय करके ले लेती हूँ उनका गिफ्ट। मैंने संभाल के रखे हैं वो सारे गिफ्ट। मेरे गुरु पापा बहुत प्यारे हैं। कितना मैंने गुस्सा किया संगत जी, मैंने बहुत गुस्सा किया संगत जी, मैंने बहुत गुस्सा किया गुरु पापा को, बहुत झिड़कती थी। अब मैं बार बार, पता है जब याद आता है ना, तो फिर मैं कान पकड़ती हूँ बार बार, फिर नोजी पकड़ती हूँ, फिर गुरु पापा से बोलती हूँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो गुरु पापा, मैंने बड़ी बेवकूफ़ी की। मैं तो बिल्कुल बिल्कुल ही पगली हूँ, मुझे पता ही नहीं लगता था मैं गुस्से में ना। आपको शंकर जी मेरे साथ हुआ बहुत बुरा हुआ है। कोई दिन ऐसा नहीं निकला जब मैं रोई ना हूँ। 30 साल 30 साल हो गए मेरी शादी को। 30 साल जैसे ही मेरी शादी हुई थी, उसी दिन मेरा काला इलम मेरे ऊपर कर दिया, हम दोनों के ऊपर कर दिया। और मैं 30 साल से परेशान थी। बहुत बुरा किया, बहुत ज़्यादा बुरा किया लोग, घर वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने। मेरी सास, मेरी जेठानी, मेरी नंद, जेठ, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं सुनील जी। और अभी भी आज भी नहीं हट रहे हैं। तो अब वो प्रसाद मिल रहे हैं उनको, अच्छी तरह प्रसाद मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। परमात्मा भोले बाबा पूरी सख्त सज़ा दे रहे हैं उनको, बहुत अच्छी बात है। मैं तो मेरी अंतरात्मा ठंडक आई है। नहीं मान रहे थे तो कोई बात नहीं, अब सज़ा तो पाएंगे ना। उनको भी तो पता लगना चाहिए ना कि 30 साल मैंने कैसे कटे हैं। संगत जी आप सोच के देखो कि मेरे घर में भूत पिशाचों का मेला लगा हुआ था। तो आप ये सोच सकते हो कि आप एक औरत 30 साल तक कैसे मेरे घर में काटा हुआ टाइम नहीं कटता ना, नहीं कटता संगत जी, नहीं कटता। ऐसे में या तो आदमी भाग जाता है, या फांसी ले लेता है, या किसी को कत्ल करके भाग जाता है। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया संगत जी, कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ परमात्मा के चरणों में हाजिरी लगाई। हाँ, हाजिरी लगाई, जाप किया, प्रार्थनाएं की, बहुत रोई। जब टूट जाती थी तो फिर रोती बहुत थी। परमात्मा को कहती, परमात्मा मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मेरे प्राण निकलने वाले हो रहे हैं। भगवान ने मुझे बहुत सहारा दिया। भोले बाबा जी आपकी सदा जय जय, बहुत बचाया मुझे, बहुत महारानी माँ आपने बहुत बचाया। मेरे कालिका भैया आपने बहुत बचाया मुझे, सच्ची उन्हीं के चरणों में पड़ जाती थी मैं। और जब मुझे 2 साल पहले गुरुपा मिले, उस वक्त मेरा बड़ा बुरा हाल था। उस वक्त को मैं इतना हाल हो गया था बुरा कि अति आ गई थी, अति, सच्ची संगत जी अति हो गई थी। मैं तो ये सोच रही थी कि या तो मैं जमुना जी में छलांग मार लूँगी, जमुना जी में छलांग लगा लूँगी, वहीं मर जाऊँगी, यहाँ या फिर घर से भाग जाऊँगी। संगत जी मेरे गुरुपा जी ने मुझे संभाल लिया, सच्ची 2 साल हो गए उन्हीं के चरणों में पड़ी हूँ।
जाप जो सारे जाप करती हूँ, महामंत्र जाप करती हूँ, सारे साहिब जी मैंने बार बार सुने, अब भी सुनती हूँ, महाशिव पुराण भी सुनती हूँ और सत्संग भी सुनती हूँ बार बार। मैंने सब कुछ किया, जैसे जैसे मेरे गुरु पाल ने मुझे बताया, मैंने सब किया, सब कुछ किया, जितना मुझसे हुआ, मतलब बहुत किया, करती रही। ऐसे में मेरी तबीयत भी खराब रही, गुरु जी सब जानते हैं, उनके सामने ही मेरी हालत है, वो सब जानते हैं, परमात्मा मेरे सब जानते हैं, उन्होंने मुझे बचाया। 2 साल से मुझे धीरे धीरे फर्क पड़ने लग गया, मुझे संगत जी फर्क पड़ने लग गया, मेरी सेहत में सुधार आया है। और मुझे गुरुपाल जी ने मुझे बार बार मैसेज लेके मुझे बताया, फिर बेटा तेरे को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। बहुत बार गुरु जी ने मुझे बचाया और बार बार बोला कि बेटे इतना बुरा हाल है तेरे घर का, पूरा बहुत पिशाचों का तो मेला लगा हुआ है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सबको भस्म करूँगा, और तू जैसे तेरे को बताया है वैसे तू करती जा, जाप कर, महामंत्र जाप कर, सत्संग कर, और जो सत्संग है यूट्यूब पे वो सुन, बार बार सुन। सब कुछ किया संगत जी ने, कहना माना, गुरु जी का कहना माना। और ऐसे में ना मुझे गुस्सा भी आ जाता था कई बार, जब सहन नहीं होता था ना, तकलीफ बहुत थी संगत जी, शारीरिक तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में सारा घर संभालना, काम भी करना, और सबसे बड़ा दुख जो मैंने सहन किया संगत जी, मैंने किसी को शो ही नहीं किया कि मुझे दर्द है, तकलीफ है, मैं तकलीफ में हूँ, नहीं, मैं ऐसे बोलती थी। संगत जी मेरे अंकल जी भी तो मिले हुए थे अपनी मम्मी के साथ ससुराल में, वही जो वो बोलते थे वही करते थे, वो भी तांत्रिकों में जाते थे, तो मैं उनको भी शो नहीं करती थी कि मैं दुखी हूँ, मुझे क्या हो रहा है, मैं शो ही नहीं करती थी कि मुझे दुख है, दर्द हो रहा है ना, बस मैं मुस्कुराती रहती थी, बस सहन करती रहती थी संगत जी। और जो भी फिर गुस्सा अंदर भर के ना, सारा गुस्सा गुरु पा के बस पूछो ना संगत जी, तो भाग के जाती थी गुरु पा के पास, और सारा गुस्सा गुरु जी पे, जैसे क्या कहूँ, अब शर्म आती है। अब गुरु जी से बार बार बस आंखें बंद करके और कान पकड़ती हूँ बार बार, गुरु बाप मुझे माफ़ कर दो, मैंने अनजाने में कितना गुस्सा किया आपको, कितना गुस्सा कर दिया, लेकिन मुझे पता है मेरे गुरु पा तो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, और सबकी सुनते हैं, और सब किसी से गुस्सा भी नहीं करते। हम तो देखो गुरु पा को कितना गुस्सा कर देते हैं, परमात्मा का, हमारे परमात्मा इतने अच्छे हैं, फिर भी हमारा भला कर रहे हैं, और दिन रात हमारे कामों में लगे रहते हैं। मेरे गुरु पा कितना मेहनत कर रहे हैं, पूरी संगत परिवार को संभाला हुआ है। गुरु पा जी आप सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, अनंत अनंत शुक्राना मेरी माल कर दिया, आप सदा जय जय। आपने जो उपकार किया मैं उतार भी नहीं सकती प्रभु, मैं मर के भी अगला जन्म भी ले लूँ तो नहीं उतार पाऊंगी, परमात्मा मेरे आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। आपने बहुत दिया प्रभु, आपने बहुत दिया, अपने छत्र छाया में ही रखना प्रभु, अपने छत्र छाया में ही रखना प्रभु, मेरे को मेरी ही औकात में रखना प्रभु, मैं कभी ना डगमगाऊं प्रभु, आपसे अरदास करती हूँ। संगत जी गुरुपा जी ने बताया कि अब बेटे बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, तेरे सारे दुख दूर हो गए, अब तूने जितना तेरे कर्म में लिखा था ना, तूने भुगत लिया, अब नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, अब जितने दुख हैं वो सारे जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है ना उनको मिलेंगे अब,
अब सब भुगतेंगे वो। और तू बेटा तू खुश रह, खेल कूदेगी, खेलेगी, नाचेगी अब तू बस। अब तू तैयार हो जा नाचने के लिए, ऐसे बोल रहे संगत जी। तो क्या वो दिन तैयार है, आने वाले बस तैयार है बिल्कुल। और तू खुश रह कर खा पी अच्छे से सो और नचने की तैयारी भी कर ले। और कोई भी डरना नहीं है, दुख दुख कोई आएगा नहीं, और डरना नहीं है बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से। मैं यहीं बैठा हूँ तेरे पास ही। ऐसे बोलते हैं गुरुपा, इतने प्यारे गुरुपा मेरे। संगत जी एक और अच्छी सी प्यारे से सत्संग के साथ मैं फिर से आपके सामने आऊँगी। मैं निशोधीमान फरीदाबाद से। अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ। अरदास करती हूँ मेरे गुरुपा जी, पूरे संगत परिवार जी को, प्लीज़ गुरुपा उनको खुशियाँ देना, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। आपकी सदा जय हो दाता। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपकी सदा जय हो प्रभु, आपकी सदा जय हो।